So, dear all, it's my pleasure to introduce our speaker for today. If you are a radio loyalist, you would recognize him as the host of Comedy Ki Dukaan on Fever 104 FM. He has dubbed most affluent celebrities like Shah Rukh Khan, Ajay Devgan, Sunny Deol, Akshay Kumar, to name a few. He is our favorite RJ Lucky. He has been the official on-ground host for the IPL matches at Arun Jaitley Stadium, formerly which was known as Firozshah Kotla Stadium, Delhi for the past 2 years. He is a voice-over artist for National Geographic Channel, also the voice behind the So Sorry segment on India Today and many commercials on screen. His social media account goes by Dub Guru RJ Lucky, and rightly so. A mimicry artist and a man of many talents. Please welcome the very edgy, the very witty RJ Lucky. It's a pleasure to have you with us today, Lucky. So over to you for interacting with our students. I'm sure they're going to love it. So this is how I am in my studio. Hi everyone. Thank you so much, Professor Sangeeta. It My was pleasure. pleasant surprise to get such kind of an introduction because बहुत rare होता है जब हमें introduction मिलता है. Usually we give introduction. So as you've told much about me, so that's what I am. So uh, I earn through my voice. So I'm not talking about just the money part. I'm talking about the fans and the people that I've earned in the past, say 7 to 8 years. So that's the journey of radio uh, for me. 7 to 8 years. Before that, I used to be an unsuccessful engineer. I did my engineering because everybody was doing engineering at that point in time. So I also, just went with the flow, and I didn't get a job. I tried for say 10 odd companies, and one of them, they agreed upon hiring me, though there was no talent that I had at that point in time, because my academics weren't not that good. But one company agreed to, invest in me. But somehow that company got bankrupt. My name is lucky, but I was unlucky for them at that point in time. So the company got bankrupt. So then uh, I had to earn because after doing engineering, so your parents are also expect that um he or she would stand on their own feet. So I tried my luck with some other companies as well, but I couldn't get any job. So eventually I landed up being a customer care executive. So I was working with a call center, HCL BPO, Noida. So I worked there for 1.5 years. Post that also, there was no aspiration that I had. So there was no plan of me being an RJ or get associated with the entertainment industry. Though I was an active participant of, my college band and the theater group. But I never thought that I would enter in this field because it was my third year when I got the placement. So the only thought that was in my mind was that, I'll just earn and I'll just settle in my life. There was no girlfriend I had at that point in time. So I thought, यार नौकरी लग जाएगी तो शादी वादी भी हो जाएगी. So we'll be settled. But then maybe, God had a few other plans for me. So I joined BPO, but then after some time, so there was a friend of mine who suggested I should try for this RJing thing. I had never listened to radio before that. I never used to listen to radio. So my first consumption of radio was when I was, say, 22 or 23, in fact. So then I just gave it a thought that I should try my luck. Maybe थोड़ी सी आवाज थोड़ी भारी है, थोड़ी बदल लेता हूँ आवाजें, थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ. So I thought maybe यही होता है आर्जिंग, तो कोशिश करी जा सकती है. So then I went for an internship. Not an internship, but I went for a radio course. जैसे दिल्ली में बहुत सारे हैं, but my friend who used to stay in Chandigarh, so she suggested me an institute which was there in Chandigarh. So that was a little economical as well, क्योंकि मेरे पास इतनी पूंजी नहीं थी, and I couldn't dare to ask my parents for money. So I went there. I went to Chandigarh. I did a course of 3 months.
which wasn't that fruitful. कुछ ज़्यादा खास सीखने को नहीं मिला. The only thing happened again, as I said, that I've earned people in my life. So during those 3 months also, I earned some contacts. There were some people who were fond of me, maybe my voice or something. So I was in touch with them. I went back to square one, I would say, because I went back to the same profile, customer care executive. I was with HCL. Then I went to Converges. I started the same thing again, taking up calls and delighting the customers, giving them offers, getting rejected, getting frustrated. So that was my life for say 3.5 years. So then somehow somebody called me from Radio Fraternity and they wanted an intern. And internship in radio doesn't pay you, and it doesn't guarantee you a job. It doesn't say that, after 3 months or 6 months, we'll start paying you. And that too in a non-metro city. So I went to Jalandhar. I joined My FM as an intern. So the only hope I had was that, maybe there is less competition in a non-metro city. So I might get acquired in My FM Jalandhar. But then again, there was a challenge that city is entirely a Punjabi city, hardcore Punjabi city. तो मेरी पंजाबी उतनी चंगी नहीं हैगी. दुआ में पंजाबी, but उतनी कमाल मेरी पंजाबी है नहीं जो वहाँ के लोगों को accept हो. So that was another rejection that I got, that you're not completely a Punjabi radio jock material that we are looking for. So then again, I was in a way heartbroken because I invested 3 months there. But then again, blessing in disguise जो हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं शब्द, 3 बड़े काम के हैं और कई बार काम आ भी जाते हैं और वो साबित कर देते हैं कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है. Had I been acquired in My FM Jalandhar, I wouldn't have been able to get a job in Delhi. तो मुझे वहाँ रिजेक्शन मिला My FM Jalandhar में. तो किसी के थ्रू दिल्ली में there was a vacancy in OFM. So they wanted somebody very quickly and somebody who's very cheap in terms of money, not otherwise. Yeah, so I remember my salary at that point in time was 11,180 rupees. For a radio jockey to earn 11,000 a month, it sounds strange. That's what it was for a couple of years. So for 2 years, I did the evening show with OFM 104.8. Not that that company doesn't have money. बहुत बड़ा group है, but they had a point of view that we are giving you a platform, so we can't give you that much money. We don't have budgets, XYZ, whatever reason they had. So I accepted it with open hands, just like Shahrukh Khan. ऐसे मैंने करके उस job को पकड़ा, and पकड़ के फिर मैंने छोड़ा नहीं, because कुछ लोगों ने ऐसे पीछे करा था. नॉन मेट्रो सिटीज की बात है, जब पैसा नहीं मिलता था, कम पैसा मिलता था, तो वो कहते हैं यार छोड़ो इस काम को, इससे बढ़िया तो डैडी का काम संभाल लो या कोई और काम कर लो. सो मैंने उस चीज को नहीं छोड़ा. आई स्टेड एंड आई continued for 2 years. Then I got an offer from some other radio station. So then these people retained me. तो वो सैलरी बढ़ गई. अब कितनी है वो नहीं बताऊंगा. ठीक है, मतलब अच्छी खासी अब. So this is the question that many people have. रेडियो में आने के लिए सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि सैलरी कितनी मिलती है. तो सैलरी इनिशियली इज नॉट दैट मच, फ्रेशर्स को उतनी नहीं मिलती है. बट द डे यू get name, the day people start recognizing your voice, the day you become voice of the channel, the day the company is known by your name, so that is the time for you to encash on. And then the company pampers you, then the company gives you money. So now everything is settled. I'm doing good. I have many people around me who like my work. As I said, मैंने बहुत लोग कमाए हैं, and सबसे अच्छी बात है मैंने लोग गवाए नहीं हैं. So there has not even been a single person who I've lost in this journey. So that's about me as a radio jockey. Engineering में कुछ नहीं करा, कोई बात नहीं यार. There are many other options. So if people like me, they have any kind of aspiration. मेरी तो कोई aspiration भी नहीं थी, फिर भी मैं यहाँ पहुंच गया जहाँ पे हूँ, ठीक ठाक कर रहा हूँ. सो अगर आपकी एस्पिरेशन है उसको पकड़ के चलो.
मे बी 3-4 डायरेक्शंस में अगर हैं, तो just see what you like the most. So I also loved to be a part of the theater group and the band. So somewhere down the line, I felt that I opted for the right thing. Maybe thoda late मैंने शुरू करा अपना career. So I started my career at 25. That was a bit late, but it's all right. I'm happily settled and अभी सही चल रहा है. 5 to 9 I talk on radio. That's the best part I like about my job, that you can say whatever you feel. uh, there are some do's and don'ts that we need to take care of, but otherwise it's a fun job. So अभी बहुत सारे प्रोफेसर्स मेरे साथ हैं. मुझे याद आता है जब मैं कॉलेज में था, तब प्रोफेसर्स जब आसपास होते थे, एक दिन होता ना वाइवा नाम का एक डी डे आता है हमारे लिए, हैं वाइवा के टाइम पे 4-5 प्रोफेसर्स होते हैं. तो तब मैं बिल्कुल शांत रहता था, कुछ पता नहीं, आता नहीं जाता नहीं था. आज बड़ा अच्छा लग रहा है, प्रोफेसर्स सारे शांत हैं और मुझे सुन रहे हैं. सो दिस इज अ ग्रेट फीलिंग. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी फॉर सो लॉन्ग. सो इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा अकेले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई है नहीं है. दो आई हैव अराउंड 188 people who've joined in. So I thank you so much for bearing with me, listening to me for say 10 to 15 minutes. So I want some interaction. Maybe Professor Sangeeta or Professor Ravindra is there, Professor Manika, Professor Bhumika. तो थोड़ी भूमिका मैंने बांध दी है, आगे आप सफर को बढ़ाइए and let's talk more about fun things, and maybe any questions that students have, or as professors you have. So we do have a Q&A chat box over here, and students have already started posting their questions as well. So if you really want this to be happening like this, we don't mind. Manika, shall we take it forward like this then? Yes, ma'am. Okay. So in fact, there is a student, Samiksha. So she's saying that being an RJ, you're an expert in communication. Yeah. So please give us some tips on how to improve it. यार कम्युनिकेशन की जहां तक बात है, मेरी बीवी की सबसे बड़ी कंप्लेंट यही रहती है कि मैं कम्युनिकेट नहीं करता हूँ. So that's how bad I am at communication at some part. But otherwise, yeah, I won't say communication is the key. I would say communicating the right thing in a right manner is more important. अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के और घुमा फिरा के और लंबा करके किसी को बताते हैं, तो वो कम्युनिकेशन थोड़ी सी लेस इंटरेस्टिंग हो जाती है. सो कम्युनिकेटिंग द राइट पार्ट at the right time is necessary. Baki communication, I just wanted to know more about the question, if there was any extension of that question, please. No extension of the question, but yes, let me put it this way, because even as MBA students, we want their communication skills to be good. I'm sure you've done engineering, you understand how the corporate world works. So they are probably wanting to understand, what have you done to become a good communicator? One thing that we should not mug up things. जैसे आप बच्चों को बताते होंगे, रट्टा नहीं मारना है, समझना है चीज को और फिर आपको उसको अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करना है. तो बहुत लोग ऐसे हैं जो पूरी किताब पी जाते हैं और फिर पूरी किताब उसको उड़ेल देते हैं. बट देन किताब के अलावा अगर कोई टॉपिक आ जाए, किसी बात के बारे में डिस्कशन आ जाए, सो वी नीड टू थॉरली गो थ्रू व्हाट वी आर गोइंग टू स्पीक. जैसे अगर मैं देखूंगा, अगर आई डोंट नो द Q&A, what are the questions, but I'm sure many of the questions would be regarding the scripting part. So बहुत बच्चे ये भी पूछेंगे कि सारा कुछ स्क्रिप्टेड होता है क्या? तो उसका जवाब यही है कि स्क्रिप्टेड कुछ नहीं होता है. इट इज जस्ट दैट वी हैव सम पॉइंटर्स, वी जस्ट गो थ्रू व्हाट वी हैव टू स्पीक अबाउट. हमें किस मुद्दे पे बात करनी है, उस पे जनता की क्या राय है, उस पे हमारी क्या राय है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर व्यू पॉइंट. क्योंकि अगर आपका व्यू पॉइंट होगा तो आप उसको बड़े अच्छे तरीके से बता पाएंगे. अगर आपका व्यू पॉइंट ही नहीं होगा, फिर आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अच्छे तरीके से. फिर तो वही बात हो जाएगी, आपने पढ़ के बोल दिया. सो पढ़ के अपने को नहीं बोलना है. हमारे यहाँ पे अगर हम लोग बोलते भी हैं रेडियो पे, सो वी डोंट रीड एंड से. द ओनली टाइम वी रीड एंड से इज व्हेन वी आर मेंशनिंग अबाउट अ क्लाइंट. क्योंकि क्लाइंट का अगर कुछ इधर उधर हमने बोल दिया तो फिर पैसे नहीं देगा. तो अदरवाइज everything is non-scripted or unscripted, whatever you say. My grammar is not that well. इसके अलावा कम्युनिकेशन पार्ट में यार बस यही है कि साफ बोलिए, आराम से बोलिए,
आई नो कई बार लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है, कुछ लोगों का बोलने का तरीका ऐसा होता है, वो बड़ी जल्दी बोलते हैं, तो कुछ कुछ ना खा जाते हैं, तो समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, अपने को पेस बिल्कुल सही रखना है। And the best way to, enhance your communication bit is, if you read newspaper, not just in your mind, you should actually read it, literally read it. हो सके तो उसका वीडियो बनाइए, and then you would get to know कि आप किस तरह से पढ़ रहे थे। जैसा आपको सुनना पसंद है ऐसा आपको बोलना भी चाहिए, है ना। जैसे अगर आप अमिताभ बच्चन साहब की कोई भी बात सुने, बहुत ही ध्यान से कान लगा के आप सुनते हैं, समझ जाते हैं, क्योंकि वो बड़े आराम से इत्मीनान से बात करते हैं। सो रेडियो में भी एक दौर था, मेरे साथ भी था, जब भी आप जब बनते हैं रेडियो जॉकी, जब आप रेडियो में आते हैं तो एक परसेप्शन होता है कि आपको ऐसे बोलना है, उस टोन में नहीं बोलना है। नॉर्मल जनता उस टोन में नहीं बोलती है, आप अपने दोस्त से इस तरह से नहीं बात करते हैं, है ना। तो आपको नॉर्मल तरीके से बोलना। हाय फीवर 104 एफएम से मैं लकी आपके साथ, एंड टुडे वी आर हैविंग दिस अमेजिंग इंटरैक्टिव सेशन जहाँ पे प्रोफेसर संगीता हैं, प्रोफेसर रविंद्र है। तो इस तरह से अपने को बात करनी है। देयर इज नो फैंसी थिंग दैट यू नीड टू ऐड टू योर कम्युनिकेशन, दैट इज इट। जैसे आप अपने भाई को तो आप डांट पाट भी देते हो, बट अदरवाइज यू नेचुरली स्पीक टू समबडी, उसी तरह से बात करना है। सो दैट इज अबाउट कम्युनिकेशन। So I suppose a lot of fluency of thought and fluency of speech is needed. This is basically, definitely needed for your kind of work. Yeah, for any kind of work, I would say, किसी के साथ भी अगर आप communicate कर रहे हैं, so just to make it interesting, even if you have non-interesting part, अगर आप अच्छे तरीके से बताएंगे, थोड़ा सा अच्छे तरीके से उन्हें समझाएंगे, तो वो लेस इंटरेस्टिंग पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। और कई बार क्या होता है, अच्छा खासा जोक होता है, उसको अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं बताएंगे तो जोक बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। तो अगर एक राजीव ठाकुर जोक सुनाता है कॉमेडी सर्कस में, नो ऑफेंस टू हिज टैलेंट, बट अगर वो जोक सुनाता है तो उसकी फील उतनी नहीं आती है। यही अगर कपिल शर्मा एक लाइन कुछ भी बोल देगा, देन मजा आ जाता है। जैसे प्रोफेसर संगीता, इनका चश्मा कभी गुम ही नहीं होता होगा, इन्होंने ऐसा ना जंजीरों से बांध रखा है। सो एक लाइन अगर कपिल शर्मा ऐसी मेरे मुंह से इतनी फनी नहीं लगी होगी शायद, लेकिन अगर कपिल शर्मा बोल देंगे तो वो बहुत फनी तरीके से बोलेंगे। और तो तरीका इज द की टू कम्युनिकेट। I agree. So there was this Aditi Kumari who was wanting to see some mimicry, and I think you did it without asking. So for a second I was thinking, oh my God, where did Kapil Sharma come from? कपिल शर्मा की तो मैं करता भी नहीं हूँ, ये तो ऐसे ही बस ऐसे ही निकल गई, क्योंकि कई बार वो निकल जाते हैं अपने आप, रुकती नहीं है। So kuch mimicry, this is what these students are requesting on the. So just name some celebrity who you would want to listen to. मैं कोशिश करूँगा उनकी निकालने की आवाज। Okay, as of now they have not named anybody. So hi Lucky. Hi sir, hi. Namaskar. So I think we are also lucky today to have you here with us. Pleasure. Normally तो हम ही बोलते रहते हैं, लेकिन आज हमें भी मौका मिल रहा है कि आपसे सुने। So so many questions have come up, and they want to know that you went through a bad phase which you just described, from doing your engineering to taking up a corporate job, becoming a customer care executive, doing a course, and then finally you landed up being a radio jockey. Yeah. Now can you tell us that one instance which actually जैसे हम कहते हैं कि भाई हर एक के पीछे, कामयाबी के पीछे एक विमेन और एक औरत होती है, तो आपकी कामयाबी के पीछे कौन है? सर बड़े सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। टू स्टार्ट ऑफ, यस, इट वाज अ वुमन ओनली, बट अ फ्रेंड। सो शी वाज अ स्कूल फ्रेंड who used to work in Chandigarh या किसी तरह, or she was studying, maybe it's a long time. So she was studying there and she suggested, यार तू स्कूल में तो इतनी नौटंकियां करता था, तू टीचर्स की आवाजें निकालता था, तू केबीसी का स्पूफ बना के प्रेजेंट करता था, अभी तू क्यों कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बना हुआ? व्हाट इज द पॉइंट? यू आर वेस्टिंग टाइम, यू आर वेस्टिंग एनर्जी, यू आर वेस्टिंग योरसेल्फ। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस अपने में नहीं था, आज भी नहीं है शायद, जितना उसको मेरे अंदर था। सो शी वाज द वन हु गेव अ स्पार्क, एंड फिर वो मुझे सीधा पंजाब लेके गई आवाज। हालांकि शुरू में
It didn't give me any outcome. 3 महीने मैं वहां लगा के आया, मैंने अपने पैसे बर्बाद किए, 3 महीने बर्बाद किए, बट लॉन्गर रन में देखा जाए तो दैट वाज द ओनली ट्रिगर दैट आई रिक्वायर्ड. और वो ट्रिगर मुझे उस फ्रेंड से मिला. उसके बाद जिन्होंने मुझे इंटर्नशिप के लिए बुलाया था, तो उन्होंने मुझे एक बात कह के बुलाया था कि तेरा 3 महीने में मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, तू बस आ जा. सो आई वॉज डूइंग अ जॉब इन एजिलेंट टेक्नोलॉजीज. हालांकि वो भी एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की ही जॉब थी. 25,000 रुपए मुझे तब मिल रहे थे वहां पे. तो वो जॉब छोड़ के अनपेड इंटर्नशिप करना, इसके लिए मुझे उन्होंने मनाया. क्यों मनाया मुझे नहीं पता, मैं उनका कुछ नहीं लगता था. इट इज जस्ट दैट मे बी ही सॉ समथिंग इन मी, और मे बी उनको कोई बंदा चाहिए था. मे बी ही वॉज बीइंग सेल्फिश, और मे बी he was somebody sent by God. तो उन्होंने मुझे किसी तरह से कन्विंस किया, और मैं कन्विंस हो गया, बिकॉज अ पार्ट ऑफ माई हार्ट ऑल्सो वॉन्टेड टू बी देयर. अपने मम्मी पापा को मैंने झूठ बोल के कि मुझे वहां पैसा मिलेगा, तो मैं गया. मैंने बहुत झूठ बोले मम्मी पापा से, बहुत झूठ बोले, बट सब थोड़ी बेहतरी के लिए, उनकी भी मेरी भी, दिमागी शांति के लिए. तो झूठ बोलना पाप है, गली गली में सांप है, काली माता आएगी, कुछ नहीं करके जाएगी. तो झूठ बोलना तो बोलिए, लेकिन सही कारण के लिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो एक वो इंसान थे जिन्होंने मुझे बुलाया वहां पे. उसके बाद कड़ियां बनती गई. विदाउट दिस चेन नथिंग कैन हैपन. सो एनीथिंग दैट हैपेंस ऑन दिस अर्थ, दैट इज बिकॉज ऑफ समबडी और समथिंग. तो हर चीज, मतलब हर चीज, मेरी शादी भी, जिनसे मैं मिला, जो मेरी वाइफ है, उन्हें भी मैं किसी रेडियो वाले के थ्रू ही मिला. तो अगर मैं रेडियो में नहीं आता तो शायद मेरी वाइफ ये वाली ना होती, कोई और होती. तो it is just that there've been many hands, many supporting hands in my entire journey. So, and also I would like to just add one point कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं रहा. I won't call it struggle. कुछ भी ऐसा नहीं है. I haven't seen very tough days. I've seen slightly off days, but मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों से नहीं गुजरी है. And that is why I am lucky. I call myself lucky. मैं नाम से हूँ lucky. मैं वाकई में lucky हूँ, because मेरे साथ ऊपर वाले ने शायद मुझे ज्यादा दिए जिसका मैं शायद हकदार नहीं था. मतलब मैं एफर्ट्स कम डालता हूँ, मुझे मिलता ज्यादा है. तो अगर मैं एफर्ट ज्यादा डालता तो शायद मुझे और ज्यादा मिलता. तो उस चीज में मैं थोड़ा सा लेजी हूँ. आई एम अ बिट laid back in that, but God has been very kind. जहां भी हूं, मतलब मैं इसका हकदार था नहीं शायद. अच्छा, इसके साथ ना एक कनेक्टिंग क्वेश्चन है which has been asked by विश्वनी लांबा. Yeah. तो वो ये कहती हैं कि you seem to be a very positive person. मतलब आपको देखो तो एक बहुत पॉजिटिविटी झलकती है. तो क्या were you the same throughout your journey, or this positivity is after you achieved the thing, you became kind of successful in your career? So this positivity came then, or was it there throughout? सर ऑनेस्टली मैं बताऊं, मेरे घर वाले, मेरी वाइफ, मेरे हर कोई, एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विद मी, दे से दैट आई एम अ वेरी नेगेटिव पर्सन. मैं पॉजिटिव हूं ही नहीं. और वो कुछ हद तक सही है, बिकॉज आई नो मेनी वुड कॉन्ट्रडिक्ट टू दिस. देयर इज दिस बुक, एंड उस पे एक शायद थोड़ी सी एक फिल्म भी बनी, सीक्रेट करके, जिसमें कहा जाता है जो आप सोचते हो, जिस बारे में सोचते हो, द एनर्जीज वर्क इन दैट डायरेक्शन एंड दैट थिंग हैपेंस. बट मेरे साथ थोड़ा उल्टा होता है, पता नहीं क्यों. मैं अगर जो चीज भी कहता हूँ, हाँ यार ये होगी, और वही नहीं होती है. इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आई फॉलो द रिवर्स साइकोलॉजी. तो मैं कहता हूँ नहीं यार ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं. मैं चाहता हूँ कि वो हो, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, होगा नहीं, एंड दैट हैपेंस. तो इन अ वे आई एम पॉजिटिव इन डूइंग थिंग्स, बट आई एम नॉट पॉजिटिव अबाउट द रिजल्ट. मतलब मैं रिजल्ट को लेके, अब शुरू में था कि मैं चाहता था ये हो, और वो नहीं होता. देन आई सडनली चेंज्ड. तो मैं रिजल्ट को लेके अब इतना पॉजिटिव नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरा दिल टूट जाता है. अगर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और वो चीज नहीं होती, तो मेरा दिल टूट जाता है. तो मैं चाहता नहीं कि अपने दिल को तोड़ूं. मैं पॉजिटिवली काम करूंगा, थोड़ा करता रहूंगा, बट आई वोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स पॉजिटिवली. तो ये है सीन. Okay, thank you. So Lucky, a lot of students have actually requested to do mimicry. They posted the name of the people, so probably we can do it towards the end. So majority of the students are saying Modi ji. Modi ji. So in the end, probably we can hear you out. Sure.
So another question what one of the students are asking is that how important is to follow your passion. So you also came into this line by by following something, Yeah. some clues which came into your life or something. So how important it is for students to follow their passion and not just go after the educational lines, or maybe passion can also include their entrepreneurship journeys also. See, honestly, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा that we as an individual need to be very honest to ourselves. क्योंकि क्या होता है कि कई बार ना हमें लगता है कि हम ये बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हम वो उतना अच्छा करते नहीं है. सो वी नीड टू टेक फीडबैक ऑफ पीपल. पैशन डेफिनेटली लाइफ में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि एक पैशन होना ही चाहिए. मतलब कई बार क्या होता है कि एक इंसान में ऐसा कोई पैशनेट नहीं है वो किसी चीज को लेके, वो एक चीज को लेके अच्छा है, वो काम अच्छा करता है. सो जरूरी नहीं है कि उसको जबरदस्ती एक पैशन लाना है अपने जीवन में किसी के कहने पर या कुछ. अगर वो, जैसे मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियर्स हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, जो नौकरी अच्छे से कर रहे हैं, तो अगर वो भी कहे नहीं यार मुझे भी अपने जीवन में पैशन लेकर आना है, पैशन लेकर आना है, और वो अपना सब कुछ छोड़ दें जो कि वो ठीक ठाक कर रहे हैं, तो फिर उनकी लाइफ थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी बहुत ज्यादा. पैशन अगर किसी में है किसी चीज को लेके, तो उसके अंदर वो थोड़ा सा वो टैलेंट होना चाहिए. जैसे अगर किसी को है कि सिंगिंग का पैशन है, तो पैशन तभी होगा जब उसके अंदर थोड़ा वो टैलेंट है. अगर किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट नहीं है, तो उसको वो जबरदस्ती पैशन में तब्दील नहीं कर सकता. अगर पैशन है तो डेफिनेटली आप चाहे उसे सोशल मीडिया के थ्रू बाहर निकालिए, चाहे उसे आई वुड से सोशल मीडिया इज द बेस्ट एग्जांपल. अगर आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है तो उसे फॉलो कीजिए, उसे मतलब ऑब्सेशन ना बनाइए. पैशन और ऑब्सेशन में थोड़ा फर्क है. ऑब्सेशन हो जाता है यार अब तो मुझे करना है, चाहे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे करना है. तो ऑब्सेशन ना हो. अगर वो पैशन है तो अच्छी बात है. पैशन तभी होगा जब आप में वो टैलेंट है. तो डेफिनेटली आपको पैशन को फॉलो करना है, और उसके लिए अलग अलग रास्ते आपने अपनाने. कोई अपने आप अपना दरवाजा नहीं खोलेगा, आपको नॉक करना पड़ेगा. सो सोशल मीडिया की जैसे मैंने बात की, तो बैक टू बैक आपको चीजें करते रहनी पड़ेंगी ताकि लोग उसको देखें, लोग उसको जाने जिसके बारे में. Student wants to know, how did you really feel when you did not get placed after your engineering? How was that feeling? मुझे बड़ा प्रेशर रिलीव हो गया था. मतलब मैं बड़े टेंशन में था कि मैं अगर किसी कंपनी में चला गया, मुझे कुछ आता नहीं है. बिकॉज कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्या है, इट इज ऑल बेस्ड ऑन लैंग्वेजेस, C++, जावा, फलां चला जो भी है. मुझे सिर्फ नाम पता है क्योंकि किताब के ऊपर इतने बड़े बड़े लिखे होते हैं, तो अंदर इतने छोटे छोटे लिखे होते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आया. पूरे 4 साल खत्म होने के बाद भी मुझे इफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज सेड A to Z, सो आई कुडंट इवन अचीव A, क्योंकि मैंने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करी थी. तो आई डिडंट डिजर्व टू बी इन एनी ऑफ द कंपनीज. तो मेरे को बड़ा एक टेंशन से मैं बचा था, क्योंकि वहां जाके फिर वही चीजें हो रही थी. आई यूज्ड टू टॉक टू माय फ्रेंड्स. वो ये बोलते थे यार कंपनी में तो आ गए, अब यहाँ ट्रेनिंग हो रही है, साला हर हफ्ते यहाँ एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, और इतनी सारी असाइनमेंट्स मिलती हैं. मैंने कहा अच्छा हो भैया, मेरी वहां नहीं हुई, मैं जाना भी नहीं चाह रहा था वहां पे. सो आई वाजंट टेंस्ड इनफ कि मैं जीवन में मैंने ज्यादा टेंशन ली नहीं है. मुझे होती भी नहीं है ज्यादा टेंशन. थोड़ा सा दुख होता है. सो दुख और टेंशन में जो फर्क है वो समझना पड़ेगा. दुख इसलिए होता है कि जो चीज मैं करना चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज इट. और जो चीज मैं कर ही नहीं सकता हूँ, अगर वो नहीं हो रही है, तो मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है. मुझे कभी दुख नहीं हुआ है, टेंशन नहीं हुई जब मैं प्लेस नहीं हुआ. हाँ, थोड़ा सा माँ बाप के लिए लगा था. उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि पड़ोसी जो होते हैं ना, वो आके बताते हैं हाँ मेरे मुंडे का हो गया है, 4 लाख का पैकेज लगे है. तो वो जो 4 लाख का पैकेज था, 360 का मेरा भी लगा था, बट वो जब कैंची चल गई उस पर, तो उनके लिए दुख हुआ था. मुझे अपने लिए कभी कुछ परवाह नहीं थी, अपने लिए दुख नहीं हुआ मुझे. स्टूडेंट्स ये पूछना चाह रहे हैं कि जो चलो इंजीनियरिंग को छोड़ देते हैं और आ जाते हैं आपकी करंट प्रोफेशन पे, जो कि अब आप बहुत टाइम से कर रहे हैं. तो व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट दिस, योर जॉब एंड योर वर्क कल्चर? सर मुश्किल नहीं है. पहली बात तो ये लिमिटेड आवर्स की जॉब है, और इन 4 घंटों में भी जो जॉब पार्ट है वो सिर्फ 1 घंटे का है.
जो कि क्लाइंट इंटीग्रेशन होती हैं, या अगर आपको कोई कॉन्टेस्ट प्ले करना है जिसमें किसी क्लाइंट के बारे में बात करनी है या किसी क्लाइंट से ही बात करनी है, तो जॉब मेरी सिर्फ 1 घंटे की है। बाकी जो 3 घंटे हैं और उससे पहले के जो 2-3 घंटे हैं वो जॉब नहीं है। सो बेस्ट पार्ट यही है इसका। सिर्फ आपको वो करना है जो आप पसंद करते हो। और मेरे ख्याल से यार हर चीज में, हर फील्ड में ऐसे ही वर्क होती हैं चीजें। अगर जैसे अभी पैशन की बात हो रही थी, अगर आप पैशनेटली एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो कंपनी का जो भी काम आएगा ना, आप बढ़िया तरीके से पैशनेटली करोगे, सो दैट वोंट गिव यू अ जॉब वाली फीलिंग। तो अपने काम से प्यार करना बड़ा जरूरी है, और जिससे आप प्यार करते हो वो काम करना बड़ा जरूरी है। तो सिर्फ मेरी बात नहीं है। अगर सर आप अगर पढ़ाना पसंद करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप जब कॉलेज आते होंगे तो कहते हैं यार आज भी जाना है मेरे को। नहीं, अगर आप पढ़ाना पसंद करते हैं तो आप मर्जी से आएंगे, आप खुश होके आएंगे, है ना। तो और वो चीज आपको आती भी बहुत अच्छे से है। तो एक चीज अच्छे से आना, उसको पसंद करना, वो आपको फिर मजा देती है, वो फिर वो जॉब की तरह लगता नहीं है। तो मेरे साथ भी वही है। So what do you really love about your job? What is the thing that you really love to do? I like that people recognize me. शायद शक्ल से उतने नहीं करते अभी, बट आवाज से करते हैं काफी लोग। सो आई लाइक टू बी लव्ड। मतलब मैंने जब ये जॉब भी पकड़ी थी तो मेरी पिछली कंपनी में जो सैलरी थी 25,000 थी। इसमें जब आया प्रोफेशन में तो 12,000 थी। मुझे नहीं पता था ये बढ़ेगी, कब बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे नहीं पता था। तो 2 साल आई स्टेड ऑन दैट सेम पैकेज। मतलब 1,80,000 का भी पैकेज कहलाया जाता है, बताइए। तो 12,000 में मैंने जॉब करी। आई नेवर फेल्ट बैड, क्योंकि मुझे सिर्फ ये अच्छा लगता था। मैं आज रेडियो पे बोल रहा हूँ तो मुझे 50 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है फेसबुक पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। हर दिन पीपल यूज्ड टू मैसेज, बात करते थे, बात करना चाहते थे, लाइव इंटरेक्शन होता था। मैं बोलता था कहाँ भीड़ लगी है बताओ, तो उधर फोन आता था। एक ये चीज। दूसरा, आई ऑल्सो डू लाइव इवेंट्स। तो जब कॉलेज की ही बात करें, किसी कॉलेज में आप जाते हैं तो वहां जब आप माइक पे बोलते हैं, वो आवाज इतनी दूर तक गूंजती है, फिर उधर से सामने से रिस्पॉन्स आता है, शोर मचता है, वो चीज बड़ी किक देती है। तीसरी चीज, व्हेन यू गेट टू मीट द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, द क्रिकेटर्स, द स्पोर्ट्समैन, जितने भी हैं, तो उसमें बड़ा मजा आता है। तो मजा ही मजा है इसमें, कुछ कहीं आपको सजा वाली फीलिंग नहीं आती है, मजा ही मजा है इसमें। तो एक चीज कोई ऐसी है नहीं जिसको मैं पिन पॉइंट करके कहूँ कि हाँ ये सबसे बढ़िया है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। Apart from RJing, I mean, is there any other hobby which you pursue? हाँ, मतलब आजकल तो बच्चा खिलाना, ये सबसे बड़ी, ये मजबूरी भी है और हॉबी भी है। मजबूरी तब हो जाती है जब बच्चा कलेश करता है, हॉबी तब बन जाती है जब बच्चा खेल रहा होता है। तो these days, during lockdown, so that's been one. I don't get time to do anything else apart from that. So the time he's sleeping, I can do whatever I want to. So उसमें जो 2-3 घंटे में कुछ कर पाता हूँ तो वो है डबिंग वीडियोस जो मैं क्रिएट करता हूँ। अगर कुछ लोग यहाँ पे मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं या उनको कभी वीडियो मिली है, सो आई टेक वीडियोस, वो चाहे पार्लियामेंट की हो, अगर मोदी जी और राहुल जी की हो तो उसको डब कर देता हूँ, या फिल्म का कोई सीन है गदर का या बॉर्डर का, उसको लेके उसको डब कर दिया। टॉपिक रिलेट कर देते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स आए तो उससे रिलेटेड नाना पाटेकर ने क्रांतिवीर में जो एक सीन था उसमें एज अ स्टूडेंट कुछ कह दिया। तो ये चीज है जो मुझे पसंद है। इसके अलावा गाना बहुत पसंद है। उतना अच्छा नहीं गाता हूं, बट गाना भी एक शौक है। आई कुडंट परस्यू इट, हालांकि मेरे म्यूजिक में 92 थे 12th के बोर्ड्स में। तो आइडली देखा जाए तो मुझे म्यूजिक को परस्यू करना चाहिए था, बट मैंने नहीं करा। मैंने कुछ भी परस्यू नहीं करा, इट जस्ट हैपेंड। तो 3-4 चीजें जो मुझे पसंद है। खेलना पसंद है, क्रिकेट अपन खेलते थे, अब तो हो गया, अब तो बच्चे के साथ खेलता हूँ, उसको ऐसे ऐसे करके बॉल फेंकता हूँ मैं, तो बस वही कर पाता हूँ। बैट तो मुझे पकड़ने नहीं देता वो। तो कुछ चीजें हैं जो पसंद किया करता था, अब नहीं खेल पाता हूँ, डोंट गेट मच टाइम, सो दैट्स इट। चलो, तो इस प्लेटफॉर्म पे तो हम जी जो आपकी क्लोजेस्ट पैशन है जो इस पे हो सकती है, दैट इज सिंगिंग। तो वी वुड लव टू हियर यू सिंग समथिंग। मेरी आवाज तो सर छोड़िए, आवाज ही की तो वैल्यू है सर। हाँ, बट वो गाना वाना थोड़ा
गा लेता हूँ शौकिया तौर पे, मतलब ऐसा प्रोफेशनल सिंगिंग कभी करी नहीं है। मैं कुछ कुछ आवाजों में गा लेता हूँ, लता जी की आवाज में गा लेता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी आवाज है ही नहीं। गाते टाइम मैं इतना इन्फ्लुएंस में आ जाता हूँ सिंगर्स के कि उन्हीं की आवाज में गाना निकल जाता है। तो वो कहते हैं ना कि यहाँ एक कुछ होता है, तो वो मेरी आवाज अभी तक खुली नहीं है। तो मैं अभी पेट से नहीं गाता हूँ, मैं गले से गाता हूँ। तो जो सिंगर्स होते हैं वो पेट से गाते हैं, मैं गले से गाता हूँ, इसलिए मेरी आवाज अभी अपनी आवाज मेरी निकली ही नहीं है। अगर मैं सिंगिंग को एज अ पैशन परस्यू करता तो शायद मेरी आवाज अच्छी होती, मैं गा लेता। मैंने वो कभी करा नहीं, पता नहीं क्यों नहीं करा, बट someday I would start doing that. Lucky people call you as a dub guru, RJ. Yeah. Who is the one person who you would love to dub from the Bollywood? मैं सबको करता हूँ। मैं कुछ आवाजें जो मैं नहीं निकाल पाता हूँ, जैसे संजय दत्त की हो गई, ये मैं कोशिश करके भी नहीं निकाल पाता हूँ। अक्षय कुमार की थोड़ी बहुत निकाल लेता हूँ, वो अच्छी नहीं होती, बट अदरवाइज अजय देवगन, ऋतिक रोशन, शाहरुख, सलमान, आमिर, सैफ, फरहान, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन बोल दिया, तो ये सब आवाजें जो मैं डब कर चुका हूँ, मैं और रेगुलर बेसिस पे करते रहता हूँ। तो Let's make a little interesting for the students. Any one of your favorites? एक एक्टर है ना जिनकी गर्दन टेढ़ी रहती है, कौन है बताइए? No guesses. नो गेसेस। आप मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं बॉलीवुड में? हद हो गई भाई, देवानंद है यार। नहीं, अरे सर वो तो आप वो फिर पिछले उसमें चले गए रेट्रो में। आज के जमाने के एक हैं जिनकी गर्दन टेढ़ी रहती है। Chawla sir, can you think of someone? ये स्टूडेंट्स आर राइटिंग। प्रोफेसर साहब जितने भी हैं ये मतलब पढ़ाई में ही रह गए हैं, मतलब ये फिल्म में। Is that श्रेया कह रही थी अजय देवगन। यस So यस। our students have told us this. यस। तो देखो मतलब वो, अब देखो आपको बुजुर्ग साबित कर रहे हैं वो जनरेशन गैप दिखा रहे हैं। आप देवानंद कह रहे हैं, अजय देवगन कह रहे हैं, और दिस वाज विदाउट गिविंग मी एनी हिंट टू द स्टूडेंट। Absolutely. अजय देवगन की आवाज जो है, ये मैंने सबसे, आई वोंट से सबसे पहले, बट प्रोफेशनली जो सबसे पहले मैंने आवाज निकालनी शुरू कर दी अजय देवगन की थी। तो वो ऐसे टेढ़ी गर्दन करके, उनकी एड बहुत चलती थी रेडियो पे, भाषाएं रंग रूप है जुदा जुदा, मगर सबकी सुबह है एक, सुबह केसरी। आज मैं यहाँ पे प्रोफेसर भूमिका को देख नहीं पा रहा हूं। आपका कैमरा ऑफ क्यों है? प्रोफेसर भूमिका, मैं आपको देखना चाहता हूं। प्रोफेसर भूमिका, अपना कैमरा ऑन करिए। प्रोफेसर भूमिका ने अपना कैमरा अभी तक ऑन नहीं करा है। अभी कर लिया उन्होंने अपना कैमरा ऑन। मुझे लगता है वो छत पे धूप सेक रही है, थोड़ी सी हवा खा रही है। अच्छा है। तो ऐसे करके उनकी आवाज है। उसके अलावा आई लाइक मिमिकिंग सलमान खान। उनकी आवाज में कितने प्रतिशत भारतीय ये वाली उनकी आवाज करते हैं, ऐसे बहुत कम हैं। उनकी आवाज में बहुत बेस है। और मैं कहना चाहता हूं कि सलमान खान ने इस लॉकडाउन में सबसे कमाल तरीके से लॉकडाउन का पालन किया है, और अपने फार्म हाउस पे रहे, और अपने साथ 2 हीरोइनों को भी लॉकडाउन को पालन करवाया, और घोड़ों को भी करवाया, एक ट्रैक्टर को भी करवाया। सो आई थिंक ही डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड फॉर दैट। तो ऐसे सलमान खान की हो जाती है। एंड ऋतिक रोशन, हाय दिस इज डुगू एंड अरे प्रोफेसर रविंद्र सर, मैं आपका फैन हो गया हूं सर। यू फैंटास्टिक, यू ऑसम, यू माइंड ब्लोइंग। और ऐसे करके उनकी आवाज ऐसी भी हो जाती। डॉक्टर वीएम बंसल, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं अपने पापा से पूछूंगा, डॉक्टर वीएम बंसल क्या आपके फ्रेंड थे? तो ऐसे उनकी आवाज 2 तरीके से हम लोग सुनते हैं। आवाज खराब करनी हो तो फरहान अख्तर हैं। मुंह पे मास्क लगा के चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हाथों को धोते जा रहे हो और सैनिटाइजर मलते जा रहे हो तो जिंदा हो तुम, इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हो तो जिंदा हो तुम। तो ऐसे फरहान अख्तर की है। एंड और कौन है, मतलब इफ यू नेम, मैं अभी एकदम से माइंड में नहीं आ रहा मेरे।
तो ऐसे ऐसे हैं, कुछ कुछ लोग हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी की हाँ मैं बहुत पसंद करता हूँ उनकी आवाज निकालना, क्योंकि उनकी आवाज में ना वेरिएशन बहुत है। उनकी आवाज ऊपर भी जाती है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी की आवाज सुनना चाहता हूँ क्या? तो एक वो हो जाती है। दूसरी तरफ पे मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस तरह से नीचे भी चले जाती हैं और फिर एकदम से ऊपर चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पेंट की जिप की तरह। तो ऐसे करके उनकी आवाज है। तो ये कुछ आवाजें हैं जो मुझे काफी पसंद हैं जब करता हूं मैं। सो I don't think we can leave So him another without a song. गाना मेरे से क्या सुनोगे यार आप? गाना मैं एक्चुअली मैं A कुछ few आवाज lines. में गाना गाता हूँ। जैसे सोनू निगम हैं, उनकी आवाज में मैं कई बार गुस्ताखी करता हूँ। मैंने एक एक्चुअली एक गाना बनाया था, बनाया क्या था मतलब एक एक गैग बनाया था। सोनू निगम ने एक दफा ढिंचैक पूजा का गाना कुमार सानू की आवाज में गाया था। सो मैंने फिर क्या करा, मैंने सोनू निगम की आवाज में ढिंचैक पूजा के सारे गाने मर्ज करके बनाए। तो ढिंचैक पूजा को आप जानते हैं? हाथ खड़ा करिए अगर आप जानते हैं। संगीता जी नहीं जानती हैं? जानती हैं? नहीं? तो ढिंचैक पूजा एक ऐसी आवाज थी जिसने मतलब वो बेसिक सी चीज जो लोग कहते हैं ना, कानों में से खून निकालने वाली बात, वो अगर ढिंचैक पूजा के नाम का एम्बुलेंस के ऊपर सायरन हो उसके गाने की आवाज में, तो मेरे ख्याल में लाल बत्ती से ज्यादा काम करेगा, लोग सब हट जाएंगे। तो ढिंचैक पूजा के कुछ गाने थे, स्वैग वाली टोपी, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, एक था दारू दारू दारू। तो सोनू निगम का गाना है अभी मुझ में कहीं। तो उस गाने की मैंने एक पैरोडी बनाई थी। सो इट गोज लाइक, नमस्कार मैं सोनू निगम, और देखिए ढिंचैक पूजा के कुछ गाने हैं जो मैं अपने गाने में पिरो के आपके सामने पेश करना चाहूंगा। तो कुछ इस प्रकार है। सेल्फी मैंने ले ली, सेल्फी ले ली है मैंने आज, दिलों का शूटर मेरा स्कूटर, दारू 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 दारू, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी यार, बापू दे दे कैश, दे दे थोड़ा कैश, करनी मुझको ऐश बापू। तो इस तरह से ढिंचैक पूजा के 4 गाने जो थे, वो एक गाने में मैंने सोनू निगम साहब के वो बनाया था कुछ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी आजकल आप देख रहे होंगे एक सारेगामा लिटिल चैम्प्स करके एक जो शो आता है, उसमें एक जनाब है जिन्होंने अलका याग्निक की बड़ी आवाज कमाल के निकाली, बहुत बड़ी आवाज निकाली। तो मैं भी थोड़ा लड़कियों की आवाज निकालने में बड़ी दिलचस्पी रखता हूँ। सो मैं लता जी की आवाज में गाना गाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो अगर लता जी के बहुत फैंस हैं यहाँ पे, तो आई एम सो सॉरी अगर आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है, बट उनका गाना है ना बड़ा फेमस था। थोड़ा गला भी बैठ गया मेरा। आई ट्राई। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले होने जाए, दूर तुमसे होने जाए, पास आओ गले से लगा लो, कभी खुशी कभी गम। तो ये जो 2 आवाज है, मैं इनमें गाना काफी पसंद करता हूँ। सो आई यूजुअली सिंग दिस एट द इवेंट्स जहां भी मैं जाता हूँ। तो इतना ही था मेरे अंदर, बस इससे अलावा थोड़ा बहुत इधर उधर का है, वो आप सुन लेंगे या सुनते होंगे या
अगर बाय चांस फॉलो करते हैं फेसबुक पे, सो यू मस्ट बी नोइंग, तो थोड़ा बहुत और चीजें चलती रहती हैं. So, sir, a lot of comments from students. Somebody saying awesome, somebody saying wow, that was really good. नहीं भी कह रहे होंगे तो आप कह सकते हैं, मैं मान लूंगा, कोई बात नहीं. नहीं सर, वो कह रहे हैं ऑफ कोर्स उनकी बहुत सारी और भी मतलब दे वांट यू टू मिमिक कपिल शर्मा, दे वांट यू टू मिमिक अमिताभ बच्चन, लालू और यादव. अमिताभ बच्चन साहब की तो भाई साहब कोई भी कर लेता है. यार संगीता जी जो बैठे हैं ये भाई जो है अमिताभ बच्चन साहब की आवाज कर लेंगे, उनकी आवाज तो भैया हर कोई कर लेता है, वो ऐसा है. और गुत्थी, ऑडियंस आर यू रेडी, इनकी मैंने बड़ी एक टाइम पे शुरू की थी मिमिक, बट वो फिर गुत्थी गुम हो गई, तो वो गुत्थी उलझ गई. बट सर आजकल क्या है ना कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां आपको नई नई आवाजें करना बड़ा जरूरी है. जैसे आपने देवानंद साहब की बात करी थी, या बहुत लोग हैं जो रेट्रो स्टार्स की मिमिक करते हैं, संजीव कुमार साहब की करते हैं, गब्बर ही करते हैं, धर्मेंद्र जी की भी करते हैं. तो चक्कर क्या है कि अब जितने नए लोग आ रहे हैं उनकी मिमिक भी करनी हम लोग को शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि जनता आजकल बड़ी स्मार्ट है. मतलब ये अभी मैं देख रहा हूँ 242 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, और आई एम नॉट श्योर कितने मुझे फॉलो करते होंगे फेसबुक पे. अब इनमें से भी 242 में से भी मैक्सिमम लोग ये सोच के आए होंगे यार अभी फॉलो नहीं करेंगे इस बंदे को, देखते हैं मतलब ये टैलेंटेड है कि नहीं है, मजा है इसकी बातों में, नहीं है मजा आया तो फिर फॉलो कर लेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे हम फॉलो. तो जनता इज वेरी चूजी एंड जनता इज वेरी समझदार. उनको अगर को माल पसंद नहीं आता तो सीधा रिजेक्शन है. तो अपन को इसलिए नई नई आवाजें पकड़नी बड़ी जरूरी है, और जो लोगों को पसंद आए. तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जितने नई आवाजों को जितना मैं कर पाऊं उतना अच्छा है. So the students previously requested, I think you say this so sorry, and you're famous for that. हाँ, सो सॉरी का जो वॉइसिंग वाला फिल्म चलता है, लाइक देयर आर टू कैटेगरीज. एक है जिसमें माइम है, वेयर इन देयर आर ओनली साउंड इफेक्ट्स, देयर इज नो डायलॉग एक्सचेंज, नथिंग. एक है जहां पे देयर इज अ सॉन्ग का पैरोडी है, या डायलॉग्स का स्पूफ है, किसी सीन का स्पूफ है. तो अभी जो चल रहा है आई थिंक वो चल रहा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाला, वो अभी चल रहा है. तो वो मैं उतनी अच्छी आवाज नहीं करता हूँ, बट वो हाँ काम चलाऊ हो जाती है सोनिया जी की, राहुल मेरा बेटा, तो वो ऐसे करके मैंने कर दी. अरे भैया राहुल जी की थोड़ी बात हो जाती है भैया, राहुल जी ऐसे ऐसे करते हैं, और उनकी थोड़ी सी मिमिक्री जो है वो उसमें डल गई. अभी जो रिसेंटली मैंने भेजा, अब आप जो देखेंगे सो सॉरी पे, होपफुली आप देखेंगे मोदी जी और मोर की जो कॉन्वर्सेशन है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द रसोड़ा वाला टॉपिक. तो वो मैंने उनको बना के दिया अभी एक म्यूजिकल 1 मिनट का चंक. सो होपफुली यूड सी दैट इन डे और 2 इफ दैट गेट्स अप्रूव्ड. तो सो सॉरी भी आई हैव बीन डूइंग इट फॉर से 2 years नाउ roughly. Right, ma'am. I think we've taken a lot of time, and it's been an entertaining session. So I would now request our Director General, Professor Bhumika, who's also handling our entire placements at the college, to be proposing the vote of thanks. Professor Bhumika. Thank you. So you made sure that I came on screen. I wasn't planning to come. So I wasn't feeling too great. So I thought I'll just watch your show and not come online. But आपने भूमिका बांधी पहले और फिर बांध के रखा कि नहीं बांध के रखा, ये बताइए ना पहले. बहुत ख्याल इधर उधर तो नहीं जा रहे थे यार, ये कब खत्म होगा. Excellent. So I have this one question for you. So apparently you have like a really unique mustache style, right? तो आपकी मूछें किससे इंस्पायर्ड है? प्लीज लेट अस नो. ये बहुत लोग मुझे, जैसे मैं ऑफिस में एंटर करता हूँ तो गार्ड साहब कहते हैं अरे अभिनंदन जी लग रहे हैं आप. तो अभिनंदन जी से मेरे को कंपेयर किया गया था एक टाइम पे, बट ऐसा था नहीं. एक्चुअली क्या था कि आई यूज्ड टू कीप बियर्ड, पूरी बियर्ड रखता, मतलब उतनी भारी नहीं जैसे रविंदर जी के, उतनी नहीं, थोड़ी स्टबल. आई यूज्ड टू कीप बियर्ड जैसे अभिषेक बच्चन की है. तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आई डोंट नो हाउ इट स्टार्टेड गेटिंग ग्रे.
सो सॉल्ट एंड पेपर वाला लुक मैं ज्यादा दिन कैरी नहीं कर पाया, तो मैंने ये सब साफ कर लिया। तो सिर्फ ये एरिया था जो कि विदाउट ग्रे पार्ट था, सो आई जस्ट प्लान टू कीप दिस। एंड शायद वाली बात है कि मैंने कभी टशन फिल्म में सैफ अली खान को इस मूंछों में देखा था, बट दैट मस्ट हैव बीन सबकॉन्शियसली इन माय माइंड। मतलब मैंने किसी को देख के या करके वो नहीं करा था, फॉलो नहीं करा था। सलमान खान की किक फिल्म आई थी, उसको देख के मैंने ये डब्बा बनाया था, ये मैंने शायद हटा दिया, उसके बाद ये रह गया, तो शायद वहां से। Excellent. And आपने you spoke about this, the latest topic which is going on, the soda wala thing, so which you've already made. So please share like a snippet with us. It'll be great to. एक तो मैंने अभी अपने पेज पे भी डाला था, मेरे फेसबुक पेज पे डब गुरु आरजे लकी पे, मैंने उस सिचुएशन को सूर्यवंशम फिल्म के एक सीन की सिचुएशन में डाल दिया था, जहाँ पे अमिताभ बच्चन साहब 3-4 लोगों के साथ खड़े हैं, 2-3 महिलाएं हैं और हीरा ठाकुर भी खड़े हैं। तो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, कल जब मैं सफारी सूट में था, उसमें जूस गिरा था, तो मैं नहाने गया था, तो तब रसोड़े में कौन था? मैं था, तुम थे, मैं थे, कौन था? तो फिर वो सामने से उनकी बीवी कहती हैं, आपका बेटा था। तो वो कहता है, ये हीरा था, इसने कुकर में से चने निकाल के खाली कुकर गैस पे चढ़ा दिया। तो मैंने उस पे वो पैरोडी करके और उस पे बना दिया था। तो अभी जो सो सॉरी में आने वाला है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो मोदी जी और मोर की बात है, जो भी वीडियो भी वायरल हुआ था। तो वो मोर से बात कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी, उस समय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था? मैं था, तुम थे, मैं थे, कौन था? तो फिर मोर बोलता है, सोनिया। तो फिर वो बोलते हैं, ये राहुल। सारे नेताओं को बुला लिया और फिर से मम्मी को अध्यक्ष बना दिया। इस तरह से तो दे कीप इट मोर इनटू द पॉलिटिकल जोन। बट ये इस टॉपिक पे बनाना बड़ा अनिवार्य सा हो गया था, बिकॉज एवरीबॉडी वाज रिलेटिंग टू इट। तो उन्होंने कहा चलो इस पे हम कुछ बना देते हैं, तो बना दिया। बट अभी वो आई थिंक इट्स गोना टेक अनदर 2 days, क्योंकि एनिमेशन बिट इज वेरी डिफिकल्ट। फ्रेम बाय फ्रेम बनता है और उसको 2-3 दिन लग जाते हैं। तो लेट्स सी, वी आर होपिंग कि 2 दिन बाद वो आप देखेंगे। And have you like dubbed stars in front of you? हाँ, अजय देवगन, their reaction to it? multiple times, and ऋतिक रोशन twice, और किसका, सलमान, I have never had a chance to perform in front of him. I've interviewed him once, but तब सलमान भाई को पहली बार देखा था तो खौफ भी था कि यार उनकी आवाज में अगर कुछ कह दिया या गुस्सा आ गया भाई को तो पता नहीं क्या हो, तो एक डर सा भी रहता है ना। और सुनील ग्रोवर के सामने, सुनील ग्रोवर वो करा हुआ है। हाँ, मतलब सामने एक्टिंग इतनी करी, बाकी विद्या बालन के सामने मैं परफॉर्म बहुतों के सामने करा, बिकॉज दे ऑल कम फॉर द प्रमोशंस, कुछ ना कुछ गैग करना होता है उनको एंटरटेन करने के लिए। Sure. So how has the lockdown been for you? Are you guys working way harder than before? Because not actually, it's been, मतलब I would say boring, because when I don't see people around me I feel sad. तो मुझे वो होता है कि टाइम पास कैसे हो, क्योंकि घर पे रह के I couldn't work that much because we are a nuclear family, so it's me, my wife and my 3-year-old kid. तो वो भाई साहब छोड़ते नहीं है ना मम्मी को ना पापा को, so it is very tough for me to take out time. So either I have to stay awake for the whole night to work, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाता। तो पिछले 6 महीने में I would say कि उतना काम नहीं कर पाया मैं जितना करना चाह रहा था। कुछ डबिंग वीडियोस बनाई हैं जिसकी वजह से हाँ काफी वीडियोस वायरल हुई थी, बट रेडियो पे मैं कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। घर से रिकॉर्ड करना, घर से स्टूडियो की फील आती नहीं है, वो लाइव एलिमेंट मिसिंग था। right. So are you at the studio right now, or are you? So we're working now. We have started working for the past 1 month. We are doing show from. Okay. Excellent. So I think we've taken a lot of your time and we've asked so many questions, but
we would love to call you at our campus whenever things get better, because all of us are also working online right now. All our classes are online, everything is online. And our students are super excited about seeing you in the auditorium and interacting you face to face with you, because I think that interaction is completely at a different level. So here we're just like putting up questions which they're asking, but if they see you in person, they'll be able to really take this conversation to another level. Yeah. So I'm going to request you on behalf of everybody here that whenever things get better, another 2 months, 3 months, or 6 months, whenever it is, we would love to have you back on campus. So, yeah. And thank you so much for taking out so much time and making this session so interactive, so I would say so much fun. And we're getting a lot of feedback from our students that this was one of the best sessions we've had after our classes, because there was nothing super technical in it. It was just so much fun to hear you and have like a really nice relaxing evening, yet learn so much about the industry and about your journey. So thanks a lot. And I would also take a second to thank our alumni, Avinash, who works in your organization, who was instrumental in connecting us, and who helped us get you here. So I would like to thank him as well. And thank you so much for taking out time and doing this for us. It's completely my pleasure. And I definitely would love to visit. जब भी चीजें normal होती हैं, definitely. We would definitely call you, because this is like I would say this is an incomplete session. This is not something which we would want. We would definitely want way more than this. This is just like a good effort, I would say, from our side, but not complete. We'll complete it next time. Sure, for sure. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.